खबरें विस्तार से। दिन पर दिन बढ़ रही महंगाई से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। इस महंगाई के खिलाफ रविवार माकपा की तरफ से रानीगंज के राजबाड़ी मोड़ में पथ सभा कर विरोध जताया गया। इस दौरान वैक्सीन देने की भी मांग की गई। पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस सहित खाद्य सामग्री के दामों में वृद्धि के खिलाफ रविवार माकपा की तरफ से विरोध दिखाया गया। रानीगंज के राजबाड़ी मोड़ में बढ़ती महंगाई के विरोध में माकपा की तरफ से सभा कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर आवाज उठाई गई। इस दौरान वामपंथियों ने सरकार से कई मांगे रखी, जिनमें बिना मूल्य वैक्सीन देने की भी मांग शामिल थी। करीबन 30 मिनट तक माकपा की तरफ से सभा की गई। इस दौरान सांसद वंश गोपाल चौधरी, पूर्व विधायक रूनू दत्ता, किशोर घटक, संजय प्रमाणिक, सुप्रियो राय, दिवेंदु मुखर्जी, कृष्ण दास गुप्ता सहित माकपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। যে অসন্তোষ মানুষের মধ্যে, এটা আজকের নয়, এই যে বিধানসভার ভোট হয়ে গেছে তার আগে কয়েক দফায় রানীগঞ্জের বড় অফিসে ডেপুটেশন হয়েছে। তারপর অনেকগুলো দিন পেরিয়ে গেছে, কিন্তু রাস্তাঘাটের মেরামতি, তার সঙ্গে এখানে যে সাফাইয়ের কাজ, আর বিশেষ করে এই যে কোভিডের যে পরিস্থিতি, যখন করোনার পরিস্থিতি শুরু হয়েছে সেই সময় লম্বা একটা সময় পর্যন্ত পৌর পরিষেবা মানুষ পায়নি। এবং মানুষের এই পরিষেবা পাওয়ার জন্য মানুষ কর্পোরেশনকে ট্যাক্স দেয়, আর রাজ্য সরকারকেও সেই ট্যাক্সের ভাগ কর্পোরেশনের কাছ থেকে রাজ্য সরকার পায়। যখন কর্পোরেশন গঠন হয়েছিল আমরা এই কথা বলেছিলাম, এটা আমাদের কথা ছিল, এবং এটা শুধু আজকে আমাদের কথা নয়, রানীগঞ্জের মানুষের কথা, যে আসানসোল কর্পোরেশন গঠন করার পর রানীগঞ্জের পৌরসভার যে ধারাবাহিকতা ছিল, পৌরসভা যেভাবে রানীগঞ্জে কাজ করতে পারত, যে কাজ করেছে পৌরসভা এক সময়, সেই কাজটা সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীভূত করে একটা জায়গায় টেনে নেওয়া হলো। আর এটা হয়ে গেল পোস্ট অফিস। রানীগঞ্জ বড় অফিস কার্যত তার কোনো কাজকর্ম নেই। বড় অফিসে একজন চেয়ারম্যান বসানো হলো, আর কাউন্সিলররা যারা জোর করে জিতেছিল, ওই ইতিহাস তো ভুললে চলবে না। শিশু বাগানের ওয়ার্ডে আমরা জিততাম, জবরদস্তি দখল করে মস্তার বাহিনী দিয়ে ওই ওয়ার্ড জোর করে ছিনতাই করে নেওয়া হয়েছে। শিশু বাগান ওই ভোট তৃণমূল কংগ্রেস জিততে পারতো না, গ্যারান্টি জিততে পারতো না। সিয়ারসলে যেমন দুটো ওয়ার্ড আমরা জিতেছিলাম। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा के बच्चा तस्करी का मामला शांत होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। बांकुड़ा जिला महिला तृणमूल कांग्रेस की तरफ से रविवार बच्चा तस्करी के आरोपी सहित सांसद डॉक्टर सुभाष सरकार को सजा देने की मांग पर प्रदर्शन किया गया। बांकुड़ा थाना अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय में तस्करी कांड के आरोपी प्रिंसिपल शिक्षक और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग पर बांकुड़ा जिला महिला तृणमूल कांग्रेस की कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। बांकुड़ा 1 नंबर ब्लॉक के कालपाथर इलाका से 9 लोगों को बच्चा तस्करी मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग पर पूरे शहर में विभिन्न संगठन सड़क पर उतर आई है। रविवार बांकुड़ा जिला महिला तृणमूल कांग्रेस कर्मी की तरफ से आरोपियों को सजा देने की मांग पर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन कार्यक्रम में बांकुड़ा जिला सचिव श्यामल सात्रा, नगर निगम प्रशासन मंडली सदस्य गौतम दास, मऊ सेन गुप्ता सहित कई महिला कर्मी उपस्थित थे। महिला तृणमूल कांग्रेस कर्मियों का आरोप है कि बच्चा तस्करी के आरोपी प्रिंसिपल कमल कुमार राजौरिया के साथ बांकुड़ा जिला सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार को कई कार्यक्रम में एक साथ देखा गया था। नतीजा डॉक्टर सुभाष सरकार को सजा देने की मांग पर बांकुड़ा जिला महिला कांग्रेस कर्मी प्रदर्शन की।
গোপালগঞ্জের কাছে অবস্থিত কেন্দ্রীয় শহর নবোদয় বিদ্যালয় যে জঘন্যতম ঘটনা ঘটছে বিদ্যালয়ের আড়ালে, যে শিশু পাচারের মতো একটা জঘন্য কর্ম চলছে এবং তাতে জড়িত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ কমল কুমার রাজরিয়া সহ সমস্ত শিক্ষার্থীরা আছে। তাদেরকে ইতিমধ্যে পুলিশ প্রশাসন তাদেরকে গ্রেফতার করেছেন, কিন্তু তার মূল যে পান্ডা রাঘব পাল, বাঁকুড়ার সাংসদ ডাক্তার সুভাষ সরকার, বর্তমানে কেন্দ্রের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী, তাকে কিন্তু অধ্যক্ষের সঙ্গে বিভিন্ন রকম ছবিতে আমরা দেখেছি, তার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। আমরা একটা দাবি রাখছি যে এই সুভাষ সরকার, যার সাথে অধ্যক্ষের এত ঘনিষ্ঠ নিবিড় সম্পর্ক, তাকেও সে নিশ্চয়ই চক্রান্তে জড়িত আছেন এবং তাকে যেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হয় এবং তার যাতে ফাঁসি হয়, এই দাবি রেখে আমরা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আজকে বাঁকুড়া সদর থানার আমরা আইসি স্যারকে একটা স্মারকলিপি প্রেরণ করেছি। গত 23 তারিখে আমরা ডিএম মহাশয়াকেও আমরা আমাদের ডেপুটেশন দিয়ে আমরা স্মারকলিপি প্রেরণ করে এসেছি। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম মৌ সেনগুপ্ত, বাঁকুড়া জেলা সাংগঠনিক সভানেত্রী, তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा के मोयरा बांध दामोदर रेलवे लाइन के ऊपर बने क्रॉसिंग को हटाकर अंडरपास तैयार करने को लेकर 2 गुट सड़क पर उतरे हैं। पहला गुट इसके विरोध में है, जबकि दूसरा गुट अंडरपास तैयार करने के समर्थन में है। रविवार बांकुड़ा जिला के पीडब्ल्यूडी विभाग के शंकर बनर्जी इलाके का दौरा किए। उन्होंने कहा कि जिला शासक को रिपोर्ट सौंपने के बाद आगे के काम पे सोचा जाएगा। मोयराबाद बाशिंदाओं की मांग को मानकर रेल द्वारा निर्धारित स्थान में अंडरपास तैयार करने को लेकर बांकुड़ा जिला परिषद पीडब्ल्यूडी विभाग के शिवाजी बनर्जी और बावरी कल्चर बोर्ड के अध्यक्ष देवदास दास ने निरीक्षण किया। बांकुड़ा के मोयराबाद इलाका स्थित दामोदर विभाग रेल पथ के ऊपर बने रेलवे क्रॉसिंग को हटाकर अंडरपास तैयार करने के विरोध में आंदोलन चल रहा था, लेकिन 2 दिन पहले इस आंदोलन के विरोध में गांव के दूसरे गुट सड़क पर उतर गए, जिसके बाद दक्षिण पूर्व रेल पथ की तरफ से अंडरपास तैयार करने का जो निर्णय लिया गया था, अब इसमें कोई बाधा नहीं रही। रविवार रेलवे क्रॉसिंग से 100 मीटर की दूरी पर अंडरपास तैयार करने का निर्णय रेलवे द्वारा अब ले लिया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग के शिवाजी बनर्जी ने अपने दौरे के बाद कहा कि मैंने सारे विषयों को देखा है, लोगों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, इसे ध्यान में रखकर ही जिला शासक के पास आवेदन किया जाएगा और आगे का कार्य जिला शासक के सहमति के बाद ही होगा। আমরা ময়রাবাদ গ্রামবাসীরা আমাদের অসুবিধার কথা নিয়ে আমরা পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পশ্চিমবঙ্গ বাউরি কালচারাল বোর্ডের চেয়ারম্যান দেবদাস দাসের কাছে গিয়েছিলাম। তারা আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছিল যে আমরা এলাকায় যেয়ে পর আমরা সমস্যা দেখব, যে কোনো পক্ষ কতটা কী ক্ষতি হচ্ছে না হচ্ছে। তারপর আজকে এসছেন ওনারা ভিজিটে এবং ওনারা দেখেছেন এবং আমাদেরকে ওনারা আশ্বস্ত করেছেন যে কোনো পক্ষের যাতে ক্ষতি না হয়। আমরাও চাই না কোনো পক্ষের ক্ষতি হোক। আমরা ওই আন্ডারপাসে যেন, যদি আন্ডারপাস হয় তো আন্ডারপাসে যেন সমস্ত রকমের গাড়ি পারাপার হয়, তার পক্ষে আমরা আছি পুরো গ্রামবাসী। আমরা কোনো ওই দিকের যতগুলো গ্রাম আছে তাদের নিরাপত্তার কথা আমরা বরাবরই ভাবি। কোনো রকম কোনো সমস্যা হলে আমাদেরকে ওই দিক থেকে ফোন করে, ওই ওদিকে গ্রামবাসী যারা আছে তাদের সব রকম সমস্যায় সমাধানে আমরা চেষ্টা করি, তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই বরাবরের জন্যে। তো সুতরাং আমরা ওদের যাতায়াতের অসুবিধা হোক এটা আমরা কোনোদিনই চাই না। আর আমাদের যদি সোজা আন্ডারপাস করা হয় তো ময়রাবাদ প্রত্যক্ষভাবে 500 পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই আমাদের এই সোজা করার বিপক্ষে, কিন্তু যাতে কোনো রকম কোনো ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেই আশ্বস্ত আমাদের করেছেন পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দেবদাস দাস। ওনাদেরকে আমাদের গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের পাশে এসে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। দেখলাম যে রেলের কাজ চলছে, তো সেটা এলাকার মানুষের কিছু অসুবিধার ব্যাপার আছে আর কি। তো তারা আমাদের বলেছিল যে আপনারা একবার আসবেন, এলাকার মানুষের যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, যাতে তাদের জীবনে চলার পথে কোনো বাধা না হয় রেলের। সেই জন্য আমরা এলাম, আমরা এটা আলোচনা করবো, আলোচনা করে এটা ডিএম ম্যাডামকে জানাবো। এটা সামান্য একটু সমস্যা দাঁড়িয়ে গেছে, তো সমস্যা মিটে যাবে। হ্যাঁ, একটু মানে জায়গার ব্যাপার নিয়ে মূলত হয়েছে আর কি, যে কোথা দিয়ে পেরাবে, রেলটা কোথা দিয়ে যাবে, এর একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে।
আর স্বাভাবিক সে কোনো একটা নতুন জিনিস হলে মানুষ একটা আতঙ্কিত হয় যে বাড়িঘর যদি ভেঙে যায় বা বসতি যদি উঠে যায় মানুষ ভয় পাবে। তাই ভয়ে আজকে মানে একটু তারা স্বাভাবিক আতঙ্কিত হয়ে আছে এবং আমরা এসে তাদেরকে বললাম না আমরা পাশে আছি, আমরা ডিএম ম্যাডামকে জানাবো, আমরা উচ্চতর কর্তৃপক্ষ রেলে জানাবো যাতে কোনো সমস্যা না হয় কোনো মানুষের যাতে কোনো সমস্যা না হয়, সব মানুষ যাতে শান্তিপূর্ণভাবে যাতায়াত করতে পারে এবং যা সুস্থ পরিবেশ যাতে পেতে পারে আর মানুষ যাতে ক্ষয়ক্ষতি না হয়। এই জন্যই আমরা এলাম, দেখে গেলাম, মানুষকে সাহস দিয়ে গেলাম যেটা আপনারা কোনোভাবে বিচলিত হবেন না, আমরা মানুষের পাশে আছি এবং শহর গ্রাম সবার পাশে আছি। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बंगाल में दुर्गा पूजा का खासा महत्व है और इस पूजा में अब 2 महीने ही रह गए हैं। ऐसे में कई पंडालों में खुट्टी पूजा कर दी गई है और कुछ में खुट्टी पूजा की जा रही है ताकि पंडालों का निर्माण कार्य शुरू हो सके। रविवार पानागढ़ के केहाट तल्ला के आंतरिक महिला पूजा कमेटी की तरफ से भी खुट्टी पूजा की गई। दुर्गापुर शहर सहित आसपास के इलाके में दुर्गा पूजा को लेकर विभिन्न क्लबों की ओर से खुट्टी पूजा का आयोजन किया जा रहा है। कुछ इलाके के बड़े पंडालों ने अपना खुट्टी पूजा कर पंडाल निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है और कुछ शुरू करने वाले हैं। इसी क्रम में पानागढ़ के केहाट तल्ला प्राइमरी स्कूल के सामने आंतरिक महिला पूजा कमेटी की ओर से रविवार की सुबह खुट्टी पूजा का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं ने एक साथ मिलकर तालाब से पानी लाकर दुर्गा पूजा स्थल पर पहुंची और पुजारी ने वेद मंत्र के द्वारा पूजा अर्चना करते हुए खुट्टी पूजा की। इस दौरान आंतरिक महिला पूजा कमेटी के अध्यक्ष रेबा दत्तो, सचिव बैशाखी बनर्जी, पल्लव बनर्जी, जस्सू बनर्जी, मौमिता दे सहित महिला कार्यकर्ता मौजूद थी। बैशाखी बनर्जी ने बताया कि इस बार 8वां साल हम लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, इसलिए खुट्टी पूजा कर दुर्गा पूजा की शुरुआत की गई है। कोरोना महामारी के चलते पिछले वर्ष भी किसी तरह से पूजा की गई थी, इस बार भी पूजा का कोई खास बजट नहीं है। सरकार के निर्देश के तहत ही हम लोग पूजा का आयोजन करेंगे। प्रत्येक वर्ष ही दुर्गा पूजा का उद्घाटन सेलिब्रिटी के द्वारा किया जाता है, अगले वर्ष भी किया गया था, इस बार भी किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि ये पूजा महिलाओं के द्वारा ही संचालित की जाती है। महिलाएं ही माँ दुर्गा की प्रतिमा लाती हैं, उसके बाद से 4 दिन तक जितने भी कार्यक्रम होते हैं सभी महिलाएं ही करती है। विसर्जन भी महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा पूजा के 4 दिन जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं उन सब का आयोजन महिलाओं के तरफ से ही किया जाता है। इलाके के तृणमूल नेता पल्ला बनर्जी ने कहा कि ये पूजा महिलाओं के द्वारा ही पूर्ण रूप से संचालित होती है, हम लोग बाहर से महिलाओं की मदद करते हैं। বাজেট কত আছে? दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में,
ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बांकुड़ा के पाताकाला ग्राम में 40 से 50 लोगों के बीमार होने से हड़कंप मच गया है। अनुमानित तौर पर डायरिया से ग्रसित होने की वजह से इलाज के लिए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिनमें 2 की मौत हो गई है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बांकुड़ा 1 नंबर ब्लॉक के पाताकाला ग्राम में करीबन 40 से 50 लोग डायरिया से ग्रसित है। रविवार 2 लोगों की डायरिया की वजह से मौत भी हो गई है। हालांकि अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज में कई लोगों को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है, जिनकी अवस्था गंभीर बताई जा रही है। डायरिया की जानकारी मिलने के बाद इलाके में स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया, जिसमें डायरिया संक्रमित लोगों को दवा देने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इलाके के पीने के पानी की जांच की गई, जिसमें किसी भी तरह के कोई जीवाणु या संक्रमण नहीं पाए गए हैं। इस विषय पर स्थानीय जिला परिषद के सदस्य ने बताया कि लगभग 40 से 50 लोग डायरिया से ग्रसित हैं। हालांकि इनमें कई लोग ठीक भी हो गए हैं, पर अभी भी कुछ लोग बीमार हैं। पीने के पानी की जांच के बाद अब लोगों को नदी तालाब का पानी व्यवहार न करने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निर्णय लिया गया है कि यहां लगातार स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएंगे। बांकुड़ा विधायक नीलाद्री शेखर दाना इस इलाके का दौरा किया और घर घर जाकर लोगों की खोज खबर ली। उन्होंने कहा कि चिकित्सा व्यवस्था और भी बेहतर हो, इसे लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। হতে পায়খানা করছিল, বমি করছিল, আর আট্টু করছিল, দিয়ে সকালে নিয়ে ভর্তি কোথায়? গোবিন্দনের ঘরে। তারপর একটি স্যালাইন দিয়েছিল, আর 3টি বড়ি খেতে দিয়েছিল, আর একটি
আর মুখে অক্সিজেন দিয়েছিল, ওটা রাখতে লাগছিল, ওটা খুলে দিচ্ছিল রাত ওখানে। না, ডায়রিয়ার মতনই হয়, ডায়রিয়াই হয়েছিল। শরীরে আর কোনো সমস্যা ছিল না? কিছুই থাকে। কি নাম আপনার? হ্যাঁ, আঙ্গুর। তারা কি এই ডায়রিয়ার কারণে মারা গেছে? খুব সম্ভবত জলের মধ্যে এটা হবে, নইলে এতগুলো লোক একসঙ্গে আক্রান্ত হবে কেন? না, মারা যাওয়ার ঘটনা। দুজন যে মারা গেছে এটা তো বমি এবং পায়খানা, তাতে আমরা প্রাথমিকভাবে যেটা অনুমান করছি, অনুমানের ভিত্তিতে এটা ডায়রিয়া, এটা হতে পারে, সে কারণেই মারা গেছে। কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে? প্রশাসনকে আমরা এটা জানিয়েছি, আবার জানাচ্ছি, এবং আমি একজন বিধায়ক হিসেবে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पांडेश्वर के बंकोला तालबगान फुटबॉल ग्राउंड में चिल्ड्रन स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट के आयोजक एवरीडे लोन इंडिया रहे हैं। इस दौरान कोरोना योद्धाओं को भी सम्मानित किया गया। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बंकोला तालबगान फुटबॉल मैदान में चिल्ड्रन स्पोर्टिंग क्लब की ओर से फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजक एवरीडे लोन इंडिया की ओर से किया गया था। टूर्नामेंट में उद्घाटन करने आए पांडेश्वर पंचायत समिति के अध्यक्ष मदन बावरी, छोरा अंचल तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष रामचरित्र पासवान, पंचायत सदस्य जुम्मन शेख, अजय सोनार, दंत चिकित्सक प्रवीण कुमार चौबे, बच्चन तूरी और अन्य सदस्यगण मौजूद थे। ये सदस्यगण सभी अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इनसे पहले उपस्थित अतिथियों का स्वागत गुलदस्ता और उत्तरी भेंट कर किया गया। साथ ही कोरोना योद्धाओं को भी सम्मानित किया गया। इसके बाद टूर्नामेंट का उद्घाटन मदन बावरी ने फीता काटकर और फुटबॉल में कीक मारकर किया। इस फुटबॉल टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। उद्घाटन मैच काजोड़ा एनकेसी और रामनगर जेएमकेआर के बीच खेला गया। इस टूर्नामेंट का सफल आयोजन में एवरीडे लोन इंडिया के धर्म पासवान, एमडी नौशाद, नरेंद्र कुमार भुइया, अरविंद पासवान, शिखा तथा क्लब के छोटन बावरी, विश्वजीत सिंह, शुभोजीत सिंह, दीपक कुमार साव और दुर्गा माझी तथा अन्य सदस्यगण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। माइक मैन रेडी रखिएगा।
पालीगंज पटना में आपका जाके छोटा शहर पांडेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।